अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद ये था कि पर्सनली आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। टॉप 2, 3, 4 जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल आती है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट रियली थिंक मच अबाउट इट। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल बस एक बैकग्राउंड में रहती है। इवन दो हमारी डेली लाइफ में अगर आप कभी नोटिस करें तो बहुत ज़्यादा इंटरफेसिंग हो रही होती है, तबीयत ख़राब होती है, आपको पैराडोल चाहिए होती है, आप वाइटामिन ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल प्लेज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अगर आप नोटिस करें तो हमारे डिस्कोर्स में भी बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल आता रहता है। दवाइयाँ महंगी हो गई, दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्या सिचुएशन है। एंड मोस्ट रिसेंटली जाहिर है कि कोविड जब गुजरा तो उसमें तो एक हेल्थ केयर क्राइसिस आया जिसकी वजह से इट केम वेरी वेरी क्लोज टू होम फॉर एवरीवन। एंड सो आई थॉट व्हाई नॉट स्पीक टू समवन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड हु बेटर than one of the biggest in Pakistan, if not the biggest, especially क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपको कोई दवाई का पता हो ना पता हो, आपको पैराडोल का तो पता होगा। And so with us today we have Mr. Farhan Muhammad Haroon, who is the CEO and General Manager of Haleon, Pakistan. Formerly he spent 12 years with GlaxoSmithKline. इनका बहुत extensive और भी जगहों का experience है. I would love to know more about it. Sir, thank you so much for being part of the show. Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here. फरहान भाई, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा पहले तो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर वर यू बोर्न एंड अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी? It's a good question. I am Karachiite, born, education सारी मेरी कराची की है. So all my life I've been in Karachi. All my education, my family. In fact, मेरे जो grandparents थे, they also all four of them, they migrated from Gujarat and came to Karachi. So we have been always in Karachi. इंटरेस्टिंग। एंड स्कूलिंग वगैरह जो है आपकी मतलब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल कहाँ से किया? So I was in Habib Public School, one of the very popular schools in Karachi. Back then, Habib Public School was one of those schools जो sports and everything was very famous. और ये वो हबीब ग्रुप वालों का था? जी. So all my schooling was in Habib Public School until my O-levels. Then I did my A-levels from Avicenna School. Interesting. And then went on for my further education. अच्छा, जो ये हबीब पब्लिक था, was it like a big campus? Because कराची में it's very interesting. I've seen के commercial buildings के अंदर campuses होते हैं. There's not a lot of, हम जैसे इस्लामाबाद, लाहौर में तो देखते हैं, we see a lot of grounds, we see a lot of infrastructure. Do you have such schools in Karachi as well? Well, mix है, you're right. But Habib Public School stands out. We had अभी इनफैक्ट रिसेंटली कुछ सालों पहले उन्होंने ऑस्ट्रोटर्फ भी लगा दिया. इट्स वेरी पॉपुलर, नोन फॉर द हॉकी स्पोर्ट. बट वी हैड 3 grounds, huge grounds, 2 swimming pools, gymnastic area, we had a gym. It was one of those schools which had not just back then but अब भी legacy है उसकी huge infrastructure. In fact, हमारी रोज़ assembly होती थी and all those march past and sports. And I think Habib Public School, what it gave me and all of us was not just education. It was much beyond education, like the dramatics, like the debates, the science exhibitions. And sports, every day it was mandatory for us to have a 1-hour sports break. और जो नहीं खेल सकता या if there is an and that was every day, not like a games period every 3 days or something like that. Every day. At the end of the day, it was सुबह से 4 बजे तक, so 3 से 4 we would play only. So interesting. And even in the lunch break, which used to have 40-minute break, most of the people would just use 10 minutes lunch किया and then खेलना शुरू हो गया. Right. So it was a proper school. How important do you think were, आपने बोला ना extracurriculars, how important do you think were they in building you eventually? Like mostly I see, particularly these days, I see parents focusing on the grades and the पढ़ाई में कैसा है. चलो बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, वो तो टाइम ज़ाया कर रहा है, चलो ठीक है अपनी खुशी के लिए कर रहा है, बट पढ़ाई में कैसा है? Do you think it was just the education that brought you to where you are today? No. And I think Habib Public School has a very huge role to play in it, where I am today. Education was part of the overall curriculum. Right. I mean, the class में जो textbook education. Sports and the competitiveness, because when we go and talk to you talk to anybody aaj, whether the person has an experience or a career in engineering or medicine science, or medicine. The competitiveness that comes from sport every day and a team sport, which is a group sport, that was something that was inculcated over there.
and everybody was so involved. किस टीम का पार्ट बनना है. We had those houses, we would have competitions. So I was part of Red House. So competitions हो रहे हैं, even in dramatics, even social science groups. So it was much beyond education. In fact, I mean, I would hate to say this, but until my O-levels, I wasn't a good student. Acha. But in terms of extracurriculars, in terms of sports, in terms of interaction, even in the class when somebody was a prefect, I mean, जो हम लोग के वहाँ prefect भी जो है ना, वो एक होता था field prefect, there was an academic prefect, then there was the house captain and the school captain. So वो पूरा एक and it's, other than this, पूरा एक dimension to it and पूरा structure around it. Everyone used to look up to those guys who would do much better. And for example, हमारा जो athletics competition होता था, the 100-meter guy was the hero, right? Right. So the aspiration was very sort of clear. Ke the people who were good at certain things, people would aspire to be that. Yes, even inside the school. Interesting. So fitness and everything was, and I'm not saying education wasn't the focus, but that was part of the overall thing. Interesting. Why did you leave for A-levels? Udhar tha nahi A-levels? Udhar O-levels ही तक था. And once you were done with your A-levels, so what did you decide to do next? So, well, as I said, until O-levels, जब O-levels के बाद जब मैं A-levels में आया था, Visana was a smaller campus, much, something that you said. उस वक्त education became a priority. And after my O-levels, I come from a very humble background. So उस वक्त important था कि I had to actually get on to education to make sure that, that the growth mindset that the school was able to inculcate and take those steps जो पूरी family को change करें. So when I got into my A-levels, that's where the education journey started. I'm very thankful to my family as well, and my parents also had one ambition that बच्चों की education best होनी चाहिए. Right. और even when I did my A-levels, उस वक्त A-levels और O-levels इतना नहीं था. So after doing my A-levels, I wanted to go for an education which would give me that stretch. Right. So I started the ICMA, which is SEMA equivalent in Pakistan Institute of Cost and Management Accountancy. I got admission there. I got admission in BCom because I wanted an academic qualification, and I got admission in ICAP, Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Right. ये simultaneously आपने तीनों Simultaneously. और ये again, so you're an 18-year-old, 19-year-old maybe, high school student. How does a 19-year-old in the late 90s decide कि यार chartered accountancy करनी कोई नॉर्मली तो पाकिस्तान में ऐसे होता है ना कि आपको कोई चचा होते हैं या कोई कज़न होता है जो कि कुछ कर रहा होता है एंड यू लाइक दैट गाय लुक्स कूल आई फील लाइक आई वांट टू डू व्हाट ही इज डूइंग बिकॉज इतना तो किसी को पता नहीं होता कि मैं एक्चुअली करूँगा क्या. सो हाउ डिड यू डिसाइड अपॉन कि अच्छा जी दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? Well, chartered accountancy was one education जिसका payback period and ROI was the best back then. Right. At that point of time, I wanted to make sure that I am able to achieve a qualification in my early 20s, 23, 24, 25 tak, and I'm able to not just earn but also grow very rapidly. And CA and ICMA were the ones ICAP jahan se iska payback zyada. BCom was only because ICAP and ICMA are not the certification. Right. So BCom was to actually get a academic degree. And you did all three? All three of them. In fact, I can tell you one very interesting one. एक मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने ICMA, BCom और ICAP तीनों को एग्ज़ाम दिया सेम डे. ICMA के अंदर एक प्रेजेंटेशन था that was 25 marks and part of the exam. I reached there at 9:30 in the morning. और 10 बजे BCom का एग्ज़ाम शुरू होना था. It was रमज़ान, तो वो इस वजह से 10 बजे था, वरना दैट्स जनरली अर्लियर. सो मैंने 9:30 बजे दिया. देन आई रीच्ड कराची यूनिवर्सिटी इन अ बस. मैं 10:40 पे पहुंचा वहाँ पे. 40 मिनट लेट. 1 बजे तक एग्ज़ाम दिया. देन 2 बजे से 5 बजे तक ICAP का एग्ज़ाम था. नॉट मेन ICAP बट वो जो द एग्ज़ाम विच अलाउज यू टू सिट इन द ICAP एग्ज़ाम, वो तीनों मैंने एक दिन में दिए फ्रॉम 9:30 to 5. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक for a young individual, and उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया. For a young individual, it was very important to make sure that you are able to stretch your boundaries
और जो फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे जाने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे CA करना है. बट आई वॉन्ट द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू डू all of it because I didn't want to waste time. I mean, not wasting time is maybe not the right word, but I wanted to capitalize and make sure that by the time I'm in mid-20s, I have all the things that, and I don't have to worry much about it. There's fundamental set हुए में and then I'm launching myself. आपने बड़ा interesting बोला fixed mindset versus growth mindset. How would you differentiate it? And I feel like this is a lot of times what's stopping you is really your mindset, right? It's the way that you perceive what's happening around you and how you perceive your situation. I've seen some of the most theoretically underprivileged people make it really, really big, and I've seen some of the most privileged people just really not be able to utilize their privilege and reach anywhere because वो बस उनके दिमाग में दरवाजे होते हैं. How would you personally differentiate between those two mindsets? So before answering this, the reason why it comes to that place, because बचपन से जो फर्स्ट आ रहा है ना फैमिली में, दैट बिकम्स आवर पर्सन, जो या बच्चा जो अपने पेरेंट्स को भी पसंद आने लग जाता है, राइट. और एवरी टाइम पेरेंट्स ऑल्सो वांट कि यार क्लास में फर्स्ट आना है. सो द टारगेट इज एक्चुअली वेरी वेरी रीसेंट. ग्रोथ माइंडसेट इज जस्ट दैट यू व्हेन यू आर एबल टू गो बियॉन्ड व्हाट यू कैन अचीव, गो बियॉन्ड, एंड जो लीवर्स हैं जो CA या मेडिसिन, वो लीवर से आगे कैसे लेके जाना है, दैट्स वेयर द ग्रोथ माइंडसेट. दैट्स नॉट अगर मैं ये कहता कि मैं सिर्फ एजुकेशन लेनी, मुझे पढ़ना है एंड मुझे या तो जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी. अभी नाउ फास्ट फॉरवर्ड हियर इन रीसेंट डेज, आई मीन सोशल मीडिया, द पेस ऑफ चेंज जो अब है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे द बेस्ट इज़ समथिंग दैट यू सी ऑफ एवरीवन. सो जो हमारा अपना भी माइंडसेट है, हमारी रिकग्निशन उस वक्त हो गई कि मेरे लाइक्स कितने, फॉलोअर्स कितने, ये वहाँ पे हम चले गए, रादर देन द क्वालिटी ऑफ स्टफ दैट एवरीवन वुड वांट टू कम अप विद. सो आई थिंक दैट्स वेयर the difference is between fixed mindset and growth mindset. Interesting. What year did you graduate with all of these things? So I did my CMA in 2002 and 2005 मैंने अपना CA कर लिया. Right. I was in PwC, जो A.F. Ferguson audit firm, and when we talked about public school, I would also want to talk about PwC, A.F. Ferguson. मुझे ऐसा लगता है कि most underrated institution है वो. अच्छा. It's not an audit firm or a consultancy firm. The way A.F. Ferguson or PwC or other big fours have been able to change lives of people from a person who doesn't know anything, and when them CA करके निकलते हैं, the transformation that happens. आप देखें पूरा पाकिस्तान में या even beyond, other than Pakistan, chartered accountants have done really well, not just financially but career wise, and PwC or A.F. Ferguson played a huge role in it. हम जब एज ए जूनियर वहाँ जाते थे तो वो हमसे वो काम कराते थे दैट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी जूनियर, मीज़ान बैंक का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था 2001 में. आई वाज पार्ट ऑफ द असाइनमेंट. द लेटर्स दैट हैड टू बी ड्राफ्टेड वो मुझे देते थे कि आप ड्राफ्ट करना है, एंड देन द सीनियर एंड द और मुझे पता भी है उस होता था कि ये वाला जो पेपर मैं बना रहा हूँ वो आखिरी फाइनल प्रोडक्ट वो नहीं होगी, पूरा चेंज हो जाएगा, बट दे टेक यू थ्रू दैट जर्नी. So PwC also, A.F. Ferguson, as I said, played a huge role, and not just for me, for many others. So that's ended in 2005. I did my MBA much later. Right. If I were to ask you, 2005 is a very different time, and chartered accountancy does make a lot of sense at the time. Do you think now modern day mein chartered accountancy is sort of, or might just end up becoming what petroleum engineers were in the 80s? And I'll give you context. ये बड़ी एक आवाज़ पहले तो I would like for you to sort of, for the general audience, to be able to explain के what's the role really for a chartered accountant in any enterprise. Like what's the value that they're driving? And secondly, अगर मैं उसी से follow up निकालूँ कि modern day में do you feel like a lot of that value may be automated? Now, particularly in the age of everything being managed, all the books, all the analysis being done electronically, and then even beyond that, उसमें एक तो ये ना कि चले आपके ledgers वगैरह electronic हो गए, but someone needs to analyze it.
But now in the age of AI, most recently, अभी एक बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि accounting will basically, the first folks to lose their jobs will be the accountants, because whatever they can do, computers can do much better with the algorithms and finding frauds and finding discrepancies and so on. So what are your thoughts on that? Achha, finance and chartered accountancy have also evolved. Right. So pehle it was all about debits and credits and the ledgers and the trial balances. उस वक्त जो financial help थी, it was not done by the typical finance guys. Right. Or even if I'm और भी पहले चले जाएं 60s and 70s. So mindset भी और output भी from finance person was not as good or as refined. These AI tools have now helped finance guys to be a better finance business partner. Right. अब एक टिपिकली होता है कि व्हेन आई वाज अ फाइनेंस CFO बैक देन, तो लोगों से अगर पूछे भी, या मैं नहीं था जब, या उससे पहले भी, कि फाइनेंस का क्या काम है, तो दे वुड से लेजर्स पोस्टिंग, पेरोल देना, सैलरी देना, कैश. Very operational. Very operational. अब now things have changed. The big launches, अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने मर्जर्स, एक्विजिशंस, आपने रीस्ट्रक्चरिंग करना है, फाइनेंस पर्सन स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. द P&L, द बैलेंस शीट आर नॉट द सेम. पहले आप फॉर एग्जांपल आज से हम 30-40 साल पहले चले जाएं तो एक ही तरह की बैलेंस शीट हर बिजनेस की होती थी. Now insurance have a totally different P&L, banking has a different P&L. Within the finance function, even if अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का और कमर्शियल साइड का फाइनेंस का P&L देखें, देर डिफरेंट. सो वो टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट ऑल्सो हैज चेंज, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फाइनेंस हैज चेंज, एंड proactively finance people or chartered accountants or have been able to also deliver on that promise कि हम लोग आपको जो क्वेश्चन है वो नंबर्स की फॉर्म में, वो एनालिसिस की फॉर्म में, यस, बाय यूजिंग द AI हेल्प. दूसरा आउटसोर्सिंग और जो चेंजेस भी दुनिया भर में आए हैं, इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग के जो रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स हैं, वो एक जगह चले गए. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आर एज competitive so that we are able to deliver more. And Pakistani chartered accountants have done really well. हम लोग पाकिस्तान में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. हमारे पड़ोस में भी, इंडिया में भी, बाकी कंट्रीज में भी, दे हैव देयर ओन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. वी स्टडी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज ग्लोबली. सो आप लोगों से जब चार्ट अकाउंटेंट से देखेंगे, a lot of our fraternity is actually working abroad. Right. So that's a transition that has happened over the years. अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स. दे आर ऑफरिंग 2 वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स. कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन. और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. Do you think like today if a kid comes to you and say, listen, I wanna do CA, would I have potentially a career trajectory the same as you? Would you agree with that? Yes and no, both. Okay. I think पहले resilience level और acceptance to failure were much higher. For example, in CA में अगर आपके कुछ papers रह गए, 1-2 papers fail हो गए या थोड़ा time लग गया, the patience level was and the determination कि मुझे करना है was higher. Right. अब now people have solutions जो ACCA है और SIMA है, और so what they do is that they want to have that safety net. Tick mark. और जल्दी so I think that's why I feel, but still अभी भी अगर जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, जिन्होंने रिसेंटली भी की है, 3-4 साल पहले भी की है, if you have the right hunger, if you have the right mindset, and again that resilience that comes in, you can do phenomenal. I think Right. जो अब पेस है वो और ज़्यादा है. आज से पहले अगर हम 20 साल पहले या 10 साल पहले देखते तो even CEOs were much, the experience was more important in terms of number of years than the actual experience. Right. So अब जो है ना, it's much fast pace.
So I mean, I think even now, if you have the right mindset and Interesting. And in terms of, last question on this, but in terms of projections, in terms of, क्योंकि अब with data, one of the great things that are beginning to happen is that you can utilize that data and you can begin to make sense of things using, segmentation and pattern recognition essentially. Are chartered accountants trained to be able to, do forecasting and to be able to utilize data, like you mentioned, because AI can be a tool to aid you rather than something that can replace you directly. So जो core operational accounting है चलें वो उसके अंदर by and large वो automate ऐसे हो गई है कि उसके लिए आपकी man hour शायद कम लगेंगे. But what replaces that in terms of the value generation for an average, let's say, accountant? अच्छा देखिए, पहले जब टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने में, तो उस वक्त फाइनेंस वाज आल्सो ड्राउन्ड विद ऑल द इंफॉर्मेशन एंड मैनुअली चीज़ें ढूंढनी है. अब बिकॉज डेटा इज़ अवेलेबल, द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस एंड द इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं पूरा पाकिस्तान से रिलेटेड बात करता हूँ, अगर वी हैव ऑल द डेटा अवेलेबल, बट नाउ वेयर टू इन्वेस्ट मोर. फॉर एग्जाम्पल, आज एनी सिटी लाइक गुजरांवाला है या उधर हमने रिसोर्सेज एक्स्ट्रा डाली हैं, तो उसका ROI क्या है. फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे एक ब्रांड एम्बेसडर खड़ी हुई हैं, वो आपको इंटरसेप्ट करती हैं, आपको पूछती हैं कि भाई आपको ठंडा गर्म तो नहीं लग रहा है, ऑल द क्वेश्चन. सो दांतों में सेंसिटिविटी, सो वो आप जब जाते हैं उनके पास, वो आप अब हम द फाइनेंस गाय इज एबल टू नाउ टेल कि वेदर दैट्स इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एम्बेसडर इज पोटेंट इनफ और नॉट. Right. वो आपको वो ROI या वो बेनिफिट दे रहा है नहीं, या हम ये करें कि कल यहाँ की जगह इस जगह पे डालें, या अगर हमें टेरिटरी मैनेजर्स बनाने या सो अब इफ़ यू गो बैक अ फ्यू ईयर्स 20 ईयर्स मे बी, तो उस वक्त तो वो वाली एनालिसिस करते हैं, तो मार्केटिंग गाय और द कमर्शियल एक्सीलेंस गाय वुड नो, हमें पता है. हाँ, ये वाले साहब सिर्फ नंबर्स पे रहते थे. जी सब. Now you have to mix the numbers with something more tangible. Yes. And interesting. और अब टैक्सेशन एंड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स एंड वो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती से बढ़ती जा रही है, राइट. एंड देन द सप्लाई चेन इज सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड नाउ. So if you want to get any raw material from Italy versus China, the finance guy would immediately tell you with all the data and कि भाई ये लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा है. बड़ी बड़ी हमने रीस्ट्रक्चरिंग की है भाई, and I think finance plays the biggest and the most important role, because something that you haven't seen, and that's where when you start doing your analysis, finance guy is able to speak that language, as I said before, जो सबको समझ आती है in terms of numbers, and so I think that's where finance is evolved. Yeah. Makes sense. 2005 में you graduated chartered accountancy, and you took your effectively first job after that. Yeah, were you still working at PwC? No, I left PwC after my chartered accountancy. What was the thought process there? एक consulting role को हटा के एक hardcore client की तरफ जाना, what drove that decision? Well, two things. I wanted to go to the other side of the table. And in PwC, I was part of a lot of restructuring assignments. So my mergers and acquisitions and restructuring was something that. So when I moved to Sanofi, back then also, in 2005, economy was doing well. We had a lot of, every one of us had a lot of options. I went to Sanofi because in Sanofi, they offered me financial controller for their industrial affairs, which meant that all the factory finance, there are 4 plants, 4 factories, manufacturing units, उन 4 का फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए. सो माय प्रेडिसेसर काजिम, हु वाज देयर, ही हायर्ड मी एंड देन ही लेफ्ट इन 6 months. One of the mentors that I have, I can't pay back, so he was the one who then handed over to me. Then after 6 months I became the financial controller. I was leading the finance function. So after PwC, I wanted to get into an area where I am able to learn the manufacturing side of finance, which is a very typical way of ways of working. The P&L बिल्कुल अलग होता है, challenges बिल्कुल अलग होते हैं, और जब when you do product costing of a pharmaceutical company, so वो वाली costing भी बिल्कुल different है.
यानी 2-2 रुपये 4-4 रुपये की कॉस्टिंग भी निकालनी से लेके बड़े मर्जर्स, बड़े रिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट भी करने। हमने वहाँ पे उस वक्त पाकन की एक फैक्ट्री बंद करनी थी, दैट वाज वन असाइनमेंट, वो किया हमने। फिर कराची में एक नई फैक्ट्री लगानी थी लिक्विड की, वो किया। बट another reason for choosing Sanofi, not just from finance background experience perspective, was also getting into healthcare sector. Pharmaceutical was one thing where you feel good. Right. You know, I mean, when you tell somebody that I work for a pharmaceutical company, वो एक बड़ा एक अच्छा सा, so that was also one thing that I wanted to get into. And Sanofi was one of the big multinationals, so that's why I moved to Sanofi. And how long were you there for? I was there for about 2.5 years. Right. Then I moved to ICI. Right. अच्छा, ICI में भी जब मैं गया तो I joined ICI. उस वक्त पाकिस्तान PTA लिमिटेड कंपनी का नाम था उनका। PTA जो पेट्रोकेमिकल था वो अलग कंपनी। 1 साल के बाद ग्लोबली ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज बिक गया, एक्जो नोबेल हो गया। राइट। सो 1 साल बाद हमने पूरा, मैं एज ए सेट कि मैंने रिस्ट्रक्चरिंग्स वगैरह पे, तो वी वर पार्ट ऑफ द एक्वायरी। सो हमने पूरा सिस्टम्स चेंज किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेंज की, वी बिकेम ग्रुप ऑफ एक्जो नोबेल कंपनी। एंड दिस वाज नॉट अ फार्मा, दिस वाज प्योरली केमिकल्स। दिस वाज पेट्रोकेमिकल। राइट। फिर उसके 1 साल बाद हम एक्जो नोबेल ने पेट्रोकेमिकल बेच दिया ग्लोबली, तो हम बन गए लॉटे पेट्रोकेमिकल। सो 3 साल में रहा वहाँ पे, पर 3 साल में फ्रॉम ग्लोबल ICI टू ग्लोबल एक्जो नोबेल, डच, from Dutch to South Koreans. So that was also a change management. I was also helping legal, company secretariat, for looking after finance. I was the finance manager there. So वहाँ जो था वो major जो काम मैंने किया वो mostly around the changes. And 3 साल में 2 huge changes you can imagine, you know. इस तरह की, मतलब इस लेवल की जब टॉप डाउन चेंजेस आती हैं तो काफ़ी दफ़ा वो कंपनी के कल्चर, एम्प्लॉइज़ उनको हिला देती है, राइट? बिकॉज देयर लाइक यार द टॉप गाइज डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, पता नहीं हमारा क्या होगा। डिड यू एक्सपीरियंस दैट देयर इन टर्म्स ऑफ द वर्क फोर्स? वर दे कन्फ्यूज्ड? हाउ डू मेक श्योर कि ठीक है, यू नो, दे कीप देयर हेड्स डाउन एंड कीप ऑन वर्किंग, यू नो, व्हाइल ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग? बात बिल्कुल सही है। इट्स नॉट व्हेन ग्लोबली ICI डिसाइडेड कि अब एक्जो नोबेल को बेचते हैं या लॉटे को बेचते हैं, globally when it's happening in Holland या UK, it's impacting not just Pakistan but the rest, the whole, everyone across the world. But there are a lot of local sensitivities. Important चीज़ ये है कि जो local leadership है वो कितना openly communicate करती रह रही है with the local teams. Yes, there are challenges sometimes कि बहुत सारी redundancies भी होती हैं। जब ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक्विजिशन की, जब मर्जर्स होते हैं तो 2 CFOs की जगह 1 हो गया, या 2 मार्केटिंग हेड्स की 2 CEOs की जगह 1. So it's important that the caring company is where the communication keeps on having such anxiety level ना बढ़े। So, क्योंकि परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू करनी है, राइट? द सेल्स एंड द प्रोडक्शन हैज़ टू कंटिन्यू। सो yes, it has its anxiety levels, but importantly globally और locally आप इतना openness है और transparency कितनी है, that helps a lot. And how was the transition for you guys? The double transition for you guys? Well, later in my career, the bigger transformation assignments came later, but in these ones, I think the culture of a British company to a Dutch and from a Dutch to a South Korean company, वो massive change था. Achha. What do you mean by that culture? Because like for example, when we became part of the Lotte Group had much more experience in the engineering side of petrochemical, right? The procurement side of it, right? So they knew much more than the local teams. When we talk about ICI, again, उनका भी petrochemical side was very legacy थी, history थी. Dutch वाले time पे they didn't know much, so we were more relevant. We were able to tell them more than they knew. So it's not just the behavioral side of the culture. It's just not कि भाई कितना लोगों को recognize करते हैं या कितना it's also the technical side of stuff. So for example, अगर हम बात करें कि बड़ा कोई चेंज करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दे वुड ऑलवेज नो मोर देन अस एंड दे वुड से कि हमारे उस वाली साइड से हम आपको ये भिजवा देंगे, राइट? सो आई थिंक दैट्स वेयर द
पीपल वुड थिंक ऑटोनॉमी कम हो गई, पीपल वुड थिंक यार अब हमारा वो इनपुट कम है, बट आई थिंक दैट ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव साइड इन द लॉन्ग टर्म. सो इट्स जस्ट नॉट द बिहेवियरल और द सॉफ्ट साइड ऑफ कल्चर, इट्स ऑल्सो द एक्सपीरियंस साइड ऑफ दैट. Interesting. And so your next switch was to GSK? Yes, so then I moved to GSK after ICI, and GSK where I'll be honest, जो legacy जो previously GSK था, now Haleon. My first day at work, I knew कि मैं यहीं होऊंगा. अच्छा. That was your forever home. Yes, and I was hired as a shared services person, finance shared services, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, back end वाली, यानी payments, P&L and receivables, उसका head था मैं. But when I was hired, उस वक्त in country shared services कहते थे हम उसको. उस वक्त the company was also going through a lot of change. We had 2 major acquisitions in Pakistan. ये कौन सा year था? 2011. Right. और Bristol Myers Squibb और Stifel की 2 major acquisitions हुई थी उस वक्त. So when I was hired, I had to help them complete that acquisition process. और the team at GSK back then, one of the best teams in the country थी. Not just in pharma but non-pharma as well. And the experiences that I've got, that I was able to get. As a finance person, मैं 2014 के end तक, यानी इन 3.5 साल, I sold animal health business. I was leading that. There was one possible acquisition थी जो हम नहीं कर पाए, we end में miss कर गए. वो एक acquisition assignment था. I've looked after distribution, I looked after warehousing, logistics. I was even deputed to HR for 3 months because वहाँ पे कुछ changes और करने थे या rollouts करने थे. So the experiences in those 3.5 years, 2011 के nearly शुरू से 2014 तक, वो that changed everything. And 2011 में जब मैंने GSK join किया, तो उस वक्त मैंने अपना MBA भी start किया from IBA. अच्छा, why did I want to do MBA is because I wanted कि future में कभी मुझे CEO बनना है. Not that CA CMA के साथ आप नहीं बन सकते, but that would give me additional wings that I might need to fly higher, right, at a later stage. So वो मैंने किया. फिर Novartis acquisition हुई globally. Novartis का जो over the counter business था, जिसमें Voltral, CAC 1000+, Calcium D, ये वाली प्रोडक्ट्स एक्वायर हो गई इन द कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस ऑफ GSK. सो देन बिकेम GlaxoSmithKline कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान लिमिटेड. हम लोगों ने लिस्ट कराया हो. मैं मीना CIS, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड रशियन स्टेट्स का इंटीग्रेशन लीड था. यानी ऑल दीज कंट्रीज़ को जो चेंजेस करने थे अपने ओवरऑल एक्विजिशन के लिए, जो रेडी होना था और एक्विजिशन करनी थी. सो आई डिड दैट फॉर अबाउट 7 months. Then I became the CFO of the consumer healthcare business. Right. और वो CFO भी मैं इसलिए बना क्योंकि नई listed entity बनानी थी. So they wanted somebody who could lead the listing part. So हमने demerger हुआ, हम नई identity बनी हमारी consumer healthcare, and हम लोग list हुए कराची स्टॉक एक्सचेंज में. उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बाद में वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए, एंड एक और एंटिटी बनी. ये एंटिटी जो बनी थी वो डीमर्जर से बनी थी, और एक एंटिटी बनी जिसमें लेगेसी नोवार्टिस के OTC ब्रांड्स को एक्वायर किया उस कंपनी ने, और फिर लेटर वो दोनों कंपनी मर्ज किया हमने. राइट. सो CFO and the integration lead for Pakistan to do all this. This was happening simultaneously. It was happening simultaneously. So I did that from 2015 to mid of 2018. And within Pakistan, the consumer health business was listed separately and the main pharma business was also listed? So from 2016 beginning, consumer healthcare was listed separately. Interesting. And pharma was always listed, right? So these two companies had to be merged. वो merger मेरे फिर मैं 2018 mid में I was sent to London. वो merger बाद में हुआ, but from 2015 to 2018 का mid, I was doing the major restructuring part. फिर मैं 2018 में, I mean I'm just going on, right? I mean 2018 में I moved to London. Right. So the company, consumer healthcare business, ने मुझे I went on a development assignment, and I was leading audit, internal advisory, consulting, consumer healthcare business के लिए globally.
Right. And All markets across. all markets. So जो मेरे बॉस थे वो was looking after not just consumer healthcare but pharma, vaccine और वो सब देखते थे. And other than the commercial business, it was only commercial. Manufacturing नहीं था उसमें. Other than that, I was looking after HR, finance and procurement. वो भी globally था. So I did a lot of assignments. मैं 2.5 साल वहाँ रहा. To that extent, I was also, I got a really good opportunity. जब मैं वहाँ था तो जब Pfizer का consumer healthcare business acquire किया हमने, तो मैं उस टीम में भी था. And जो टीम बनी थी वहाँ पे, उस टीम में कोई 40 लोग थे. उस 40 लोग के साथ I went to the US और वहाँ पे हमने acquisition के सारे initial काम किए. उस वक्त तक decision हो चुका था, but post decision हमें implement करना था. So that, as I said, with these in this company, the changes are the only constant thing. कि हर थोड़े साल बाद सुकून से बैठते नहीं है कि भाई माल बिक रहा है, काम चल रहा है, बैठे रहो आराम से. and I think that's the growth. I mean, आज मैं पाकिस्तान की बात करूं, हम लोग कोई 5 बिलियन नहीं थे 2015 में. आज हम 27-28 बिलियन हैं. And I'm telling you the number of last year because we are listed on it. So I mean 7-8 साल में 5 से 25 या 5 से 28 is not a small, and that is only possible अगर आप consistently change पे काम करते रहे. So then London 2.5 साल के बाद I came back as a CEO. Why did you decide to come back? And this is off topic. Pause the professional journey for a bit. You're talking about 2018. 18 में मैं गया मिड में. ठीक है. और 21 के शुरू में आ गया. 21 के शुरू में आ गया, राइट. सो इसके दरमियान में कोविड happened as well. There's a lot of shift. Was your family with you as well? Yeah. Right. आप यूके में बैठे हुए, I'm sure you could have, अगर तो company was sending you back, you could have argued कि यार I want to stay. Or you could have switched to another place altogether. 2.5 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल और हो जाते, एक पासपोर्ट भी प्यारा सा आ जाता साथ. What was the thought process there where you decided कि यार, you know what, like let's go back to Pakistan, which I mean is not a very stable market in any sense of the word, right? And it's always a hit or miss. There is always a नाजुक मोड़ जिसके थ्रू आपको ना एक constantly एक fight and flight, एक constant drowning से बचना होता है. What was going on in your mind when you were making that shift? अच्छा, जब मैं गया था ना 2018 के में, तब मुझे पता था कि मुझे वापस आना है. एंड मेरी फैमिली को भी पता था. तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड. So you didn't have your kids crying about कि यार why please don't take us back. मेरे बच्चों के साथ एक और भी चीज़ हुई कि जो 2020 में कोविड की वजह से वी वर होम बाउंड. Right. तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड इन द ट्रांजिशन. Right. अच्छा, दूसरा अनफॉर्चुनेटली माई फादर इन लॉ ऑल्सो, वो कोविड में उनका इंतकाल हो गया जब हम यहाँ पे आए इमरजेंसी में. अच्छा, I was offered the CEO position. Right. I always wanted to be in commercial. उस वक्त तक मैं finance, advisory, audit, restructuring, integration. This was my area, my opportunity. और दूसरा, when you talk to the senior leaders, दो में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है अगर आप कोई चेंज पे जा रहे हैं. या तो आप अपना फंक्शन चेंज करें या जोग्राफी चेंज करें. सर ना, जब मुझे कमर्शियल में आना था या मुझे सीनियर CEO या जनरल मैनेजर पोजीशन पर आना था, तो इट वाज ईजियर फॉर मी टू शोकेस माय टैलेंट एंड माय एबिलिटीज इन अ जोग्राफी जिसपे मैं फेमिलियर था. राइट. सो पाकिस्तान वाज दैट for me, and in Haleon the focus on talent and development is so much. ये 2.5 साल भी I was on a development assignment. So जब मैं गया था तब भी मुझे पता था कि मुझे 2-2.5 साल में मूव होना है कहीं ना कहीं. Right. So why not Pakistan and getting a position जो. And my understanding is you're the youngest CEO of any pharma business in Pakistan in history. Well, yes, I think that's as far as I know, but I think it's not just the age. That's just a number. It's actually the experiences as well. When I came to Pakistan, the changes, the culture change, बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो करनी थी. We wanted to get this business to a position जहाँ पे हम पे एक growth blast पे जाएं, right? Ready हो जाएं for future. So the experiences जो मेरे पास थे with all the change management, all the restructuring, वो I think enable me और जो stakeholders थे to agree on a fact कि भाई मैं यहाँ पे आके काम करूँ. Then I also had an experience of managing a listed entity as a CFO. That also gives you a plus. So yes, but I think it's the experiences more than the age. The age.
What happened there with Haleon? पहले तो मुझे ये बताएं, is Panadol going to be carrying the Haleon brand as well? Yes. This is the first time that I'm hearing about it. So you guys have been fairly, I mean, I'm sure आपकी space में तो होगा, but मैं एक average public के से बता रहा हूँ कि we haven't heard much about what really went on there. थोड़ा सा मुझे इस transition के बारे में बताएं. कि what happened with GSK and Haleon, and both in terms of public facing as well as structurally. Why did you guys go for it? And what happened in the last 1 year? अच्छा देखिए, the previous GSK had 4 businesses globally, जिसमें 4 major categories में pharmaceuticals, vaccines, हमारे HIV की का portfolio और consumer healthcare business. GSK PLC that is listed in the New York Stock Exchange and London Stock Exchange, उसके बाद इसका demerger हुआ और consumer healthcare separate बन गया. Haleon comes out of the historic British and Latin word which means good health. Hale, good health, and Leon is strength. So we wanted to be very, very relevant for consumer healthcare. जो pharmaceutical side of business था, उसका अपना तरीका है करने, और सेल्फ केयर या जो कंज्यूमर हेल्थ केयर वो थोड़ा डिफरेंट है. सो ग्लोबली इट वाज डिसाइडेड कि इसको अलग करते. पाकिस्तान में कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस ऑलरेडी सेपरेटेड लिस्टेड था. सो दैट ये सिर्फ पाकिस्तान में था, बाकी दुनिया में कंज्यूमर हेल्थ केयर कुछ कंट्रीज में था जहाँ पे सेपरेटली लिस्टेड 2 कंपनीज थी, जिसमें इंडिया में अलग था, 1-2 और कंट्रीज में अलग था जो सेपरेटली लिस्टेड, बट ओनरशिप ग्लोबली तो सेम ही थी. राइट. अच्छा, शेयर्ड सर्विसेज भी सेम थी. सो फॉर एग्जांपल हेलियन कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस को शेयर्ड सर्विसेज लेगेसी फार्मा बिजनेस ही देता था, फाइनेंस की, HR की. तो जब हम 1 साल पहले 18 जुलाई जब हम लोग अलग हुए, उसके बाद ये हुआ कि अब हमें सब अपना फंक्शंस, सारे सपोर्ट फंक्शंस अलग करने. सो वो हमने अलग किया, हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, हमारा नाम अब स्टॉक एक्सचेंज पे भी हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड. एंड द ब्रांड्स लाइक पैनाडोल, CAC 1000+, सेंसोडाइन, इनो, पैराडोंटेक्स, वोल्ट्रॉल, ह्यूज ब्रांड्स जो है ना हमारे पास ऑलरेडी थे और वो यहाँ पे. सो आई थिंक हेलियन एज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है, वो ब्रांड जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि दैट विल एक्चुअली इन द लॉन्ग. हाँ, मतलब आई मीन you got some like I mentioned earlier on, Panadol and Sensodyne and CSU 1000, and ये household brands हैं. ये वो brands हैं जो कि गली गली पे जाते हैं इस मुल्क की. वो really it penetrates the arteries and the veins, and that's why I'm surprised कि वो Haleon, even though it's a new entity, but उसकी जो core base है वो बहुत powerful है. Just to confirm, so now these are 2 separate entities, yes. 2 separate companies altogether, or teams, everything is all independent. Okay, so tell me about Haleon. And you've mentioned this multiple times, consumer healthcare and hardcore legacy pharma. How would you differentiate between those 2? अच्छा देखिए, pharmaceutical over the counter यानी OTC, consumer healthcare, the difference is जब हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पर्ची, विच इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन इन उर्दू, जो डॉक्टर का नुस्खा कह लें, या पर्ची एज अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन. सो नुस्खा जो डॉक्टर, कंज्यूमर हेल्थ केयर डील्स इन प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट, नुस्खे से पहले. फार्मास्यूटिकल डील्स इन नुस्खे के बाद, लाइक द एंटीबायोटिक्स एंड अल्लाह ना करे ऑन्कोलॉजी और रेस्पिरेटरी. Haleon and self-care, that's something which goes hand in hand. And Haleon right now is the largest consumer healthcare company in the world. Really? And Haleon Pakistan Limited is the largest consumer healthcare in the country, consumer healthcare business in the country. Interesting. You'll be surprised, Panadol के 5 tablets के जो variants हैं, हम नियरली 6.5 बिलियन टैबलेट्स एक साल में प्रोड्यूस करके बेचते हैं और पाकिस्तान में बिकती है. और पैनाडोल रेगुलर और पैनाडोल एक्स्ट्रा मिला के 5.5 अरब, यानी कि नियरली ये 2 जो हैं 45 करोड़ टैबलेट्स प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एंड सोल्ड इन पाकिस्तान. पैनाडोल इज़ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल और OTC ब्रांड इन द कंट्री.
इतना बड़ा है कि जो सेकंड और थर्ड है उनको वॉल्यूम ऐड करें तो वो पहले से कम. सो हेलियन को आइडेंटिटी के लिए इतना चैलेंज नहीं है. देन वी आर द लार्जेस्ट इन मल्टीविटामिन्स इन द कंट्री विद CSE 1000+ एंड कैल्शियम D. और multivitamins या calcium supplements we are the largest. Then in terms of oral health care, Sensodyne and Parodontax, Sensodyne is in the top 2 in the country. Right? So when you look at Haleon की अपनी identity या अपना help for when you ask difference between pharma and consumer healthcare, they are all before the nuskha. The important thing is that Haleon believes in better health, better everyday health, and we want people to take care or take ownership of their own health. तो ये जितने भी solutions हैं वो हैं कि जो आपको बीमारी तक ले जाने से पहले. पाकिस्तान में do you think self care is mature? My understanding is, and I'll give context. My understanding is कि पाकिस्तान में and then we look at stats like, you know, one of the highest or the highest rate of diabetes in the world. You know, you've got obesity in Pakistan, you've got malnourishment in Pakistan. Recently I was speaking to a couple of folks on the podcast, and you know, when I found out, one was from agri hardcore, you know, one was from the meat industry and one was from the dairy industry. And I'll be very honest, I've stopped wanting to eat anything since I've spoken to them. You know, stuff like the cheese that by and large gets produced and we consume in our pizzas, in our burgers, is 90% or 70% vegetable oil. The vegetables that we're consuming has one of the highest you know, rate of fertilizer and pesticides and herbicides on it, and so it's extremely poisonous in a lot of ways. The meat is infested with sort of steroids and enzymes that are extremely detrimental to the human body, and so you know, you hear those things and you're scared. Okay, what are we consuming? And that's just the tail end of it, right? उसके और ये सारी चीज़ के बावजूद आप पाकिस्तानी कल्चर देखते हैं, वो कहते हैं कि you know, like देसी उनको पता है कि pasteurized milk at least has some quality controls, but वो गवाले का पाउडर मिलावा दूध पी रहे हैं. You know, वो देसी अपनी मुर्गियाँ और वो खा रहे हैं, not देसी मुर्गियाँ, but you know, completely unbranded, completely unchecked and unquality controlled, and they somehow believe that this is actually going to, you know, help us sustain in the longer run. Even in a lot of ways, our food is filled with oil. We're the largest per capita oil consumption in the world. And so culturally, we're not very, we generally go to the doctor जब बिल्कुल मामला हाथ से निकल चुका होता है ना, फिर हम जाते हैं. हमें कोई अगर आके बताता है कि, you know, like take this tablet or take this and that, तो हम very cynical होते हैं कि यार ये ना actually गेम खेल रहा है मेरे साथ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. So उसके उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए, obviously you guys would have the data, particularly if you were comparing Pakistan to other similar demographics. I wouldn't want to compare to the US, for example, but similar demographics. What's the state of health self-care in Pakistan? अच्छा देखें, जो आपने dietary side बताई, I mean that's a very other side of the picture, but more or less self-care जो है वो evolve ही हो रही है पूरी दुनिया में. जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि हमने हेल्दी फूड खा रहे हैं और वो हमें पता नहीं है कि उसकी क्या क्वालिटी चेक्स हैं वगैरह, बट मोर और लेस इश्यूज़ ये सारे दुनिया में हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ केयर एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली जो डर है मेडिसिन से. अब बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि हम लोग एंटीबायोटिक्स या बहुत सारी और इस तरह की दवाएँ, वो उसमें शायद हम इतना हेजिटेट नहीं करते कि गए और भाई गला ख़राब है तो ये दवा ले लिया, डॉक्टर के पास नहीं गए. बट हाँ, वैसे you're right कि in a lot of ways antibiotics we've been overusing. not overusing but using, right? So बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको दूसरी साइड भी नज़र आएगी कि भाई खुद ही हमने ये, हालांकि आई थिंक वी नीड टू गो मच अर्लियर कि हम कितना न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं अपने, कितनी. There are 4 actually areas. One is the health की बारे में अपनी नॉलेज कितनी, आशनाई कितनी, कितना आप समझते हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक एज यू सेड कि
ऐसी हालत नहीं होगी कि 2 लड़के आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं जब तक हम चलता चलाएं। तो सेल्फ केयर तो और भी पहले ना, कि आप जो है वो वाइटामिन्स भी लें, और आप जो है वो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब पैरासीटामॉल या पैनाडोल जो है वो उसके कॉम्बिनेशन हैं। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल माइग्रेन है तो आप, अब देसी नुस्खा वुड भी कि आप थोड़ी देर सो जाएं और नींद आ गई तो आप व्हाई नॉट हैव आप सेल्फ केयर मेडिसिन अवेलेबल है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, माइग्रेन की टैबलेट लें। वो हम क्या समझते हैं कि यार आदत हो जाएगी मेरी, या अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आपको बॉडी में इश्यूज हैं, मसल रिलैक्सन ले, यार मैं इसके बगैर मुझे नींद ही नहीं आई। मगर अगर आप वो देखें कि अनदर एक्सट्रीम एग्जाम्पल, दे आर औरतें जो अपने बच्चों को खांसी का शरबत इसलिए पिलाती है कि ताकि आराम से नींद अच्छी आ जाए। Why are you doing this? So वो जो टॉलरेंस है ना वो बहुत ही रैंडमाइज्ड है। वो अपने सब ने अपनी अपनी एक सेफ जोन बनाया हुआ है। तो आई वुड नॉट अग्री टू के ओवर यूज। अच्छा, एक तो हेल्थ इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रिवेंशन पे आप कितना काम करें। अब पाकिस्तान में हर 4 औरतों में से 2 और हर 4 मर्दों में से 1 कैल्शियम की कमी है, और फ्यूचर में इट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के इश्यूज। व्हाई डोंट वी हैव दोस सप्लीमेंट्स, व्हाई डोंट वी स्टार्ट एक्चुअली एक्टिव। दूसरा होता ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेटिंग मदर्स या पोस्ट डिलीवरी हमने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया और बस जिम्मेदारी खत्म। एंड दैट्स वेयर द चेंज हैज़ टू कम इन। आज अगर आपको डॉक्टर कहता है कि भाई मेडिकल असेसमेंट करा लें, आप ये सोचते हैं यार ये ज़रूरी भी है ये करना, यू नो मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। बट यू गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड, मेडिकल असेसमेंट्स आर रेगुलर, कि आपको हर, ताकि आप बड़े प्रॉब्लम से बच जाएं। एंड दैट्स रियली व्हाट्स इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी देयर, राइट। एक बड़े इंटरेस्टिंग वो थी, आई फाउंड आउट द अदर डे कि पाकिस्तान में, बिकॉज वी जनरली जो हॉट क्लाइमेट्स होते हैं, सो इवन इन फिल्म्स वी सी अ लॉट ऑफ द सॉर्ट ऑफ पीपल इन द वेस्ट, वो एक होता है ना कि वो सन बेथिंग कर रहे होते हैं, वो बीच में बैठेंगे, वो कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो धूप ही ऐसी होती है कि सन बेथिंग का मजाक ही कोई नहीं है। और उसका नुकसान ज़ाहिर है ये है कि वी आर अनएबल टू गेट लॉट ऑफ विटामिन डी। पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड उसके फिर अपने बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हैं, आपकी मोटिवेशन, आपकी एनर्जी लेवल्स एंड सो ऑन। Do you guys have a product for vitamin D as well? So calcium D and CAC 1000 plus both have vitamin D in it. How well does that perform? अगर आपके डाइटरी अपने कैल्शियम सप्लीमेंट के अंदर विटामिन डी नहीं है तो वो बॉडी पे एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। अच्छा, विटामिन डी also helps absorb the calcium. Oh, interesting. So अगर आप ऐसा कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें विटामिन डी नहीं है तो आप समझे कि वो आपने सिर्फ टेस्ट के लिए लिया है। अच्छा, दैट्स वाई द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन या कैल्शियम सप्लीमेंट इज CAC 1000 प्लस, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी भी है और कैल्शियम डी में भी। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नॉट जस्ट दिस विटामिन जस्ट सप्लीमेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वो माइंडसेट है ना पीछे कि आपने ये इन्वेस्ट करते रहना है अपने ऊपर, दैट इज़ समथिंग जहाँ पे हमें काम करना है। टेल मी अबाउट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपकी ग्लोबल सॉर्ट ऑफ what would you call it, the menu of products, and then what's available in Pakistan. Is everything here already? Yeah, are there some that will eventually see coming into Pakistan? Well, depends upon the timing and plans, but Centrum जो है वो पाकिस्तान एंटिटी के पास नहीं है, ग्लोबल Haleon owns it, Chapstick, Emergency, Caltrate, they are the big प्रोडक्ट्स। निकोटीन के पैचेस भी हैं, वो सब ग्लोबल हैं। बट पाकिस्तान के अंदर वी हैव पैनाडोल, इनो, लेगेसी, पहले आयोडेक्स होता था, वोल्ट्रॉल, CAC 1000 प्लस, कैल्शियम डी, सेंसोडाइन, हाइड्रोजोल, पैराडोंटेक्स। How much of this is produced in Pakistan? I think 99%. Okay. Let's break down the production. एक प्रोडक्शन होती है कि we're producing everything, एक वो मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियों वाली होती है कि we're you know, a lot of ways something as simple as कुछ FMCG प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि सच्ची बात है कि उसमें सिर्फ पानी मिलता है पाकिस्तान में, वो पाउडर आता है और पानी मिलता है और you know you got whatever, and so really the cost minimization is just that sort of human capital sort of arbitrage जो कि बहुत थोड़ा है।
एंड आई अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इतना एग्रेसिवली डेवलप ही नहीं हुआ हुआ, तो आपको रॉ मटेरियल के इशूज़ हैं, सप्लाई साइड के इशूज़ हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में हाउ well developed is the pharmaceutical industry in Pakistan? And I'm not necessarily trying to understand your core but overall, if we are, let's say, producing a medicine, let's say it's called XYZ, and it has obviously a chemical combination, वो किस हद तक पाकिस्तान में ही बन रहा होगा उसका पूरा प्रोसेस, या और वो किस हद तक जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो काफ़ी लोग कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में इज़ बाय एंड लार्ज अ पैकेजिंग इंडस्ट्री. हाउ ट्रू इज़ दैट? अच्छा देखें, आई गिव एन एग्जांपल. जो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में बन भी रहे हैं ना, उन रॉ मटेरियल्स का रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है. ठीक है. सो यू आर राइट इन मैनी वेज. अब अगर जो मेज स्टार्च हमें लेना है वो तो हम यहाँ से ले रहे हैं, जो टैबलेट को शेप बनाने के लिए. बट पैरासीटामॉल पाकिस्तान से लेते हैं, तो पैरासीटामॉल का जो PAP है, जो जिसको हम रॉ मटेरियल ऑफ पैरासीटामॉल, वो बाहर से आता है. दिस इंडस्ट्री इज यस मे बी 90% डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट. बट ये फॉर्मुलेशन जो एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, एक सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग. जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें रॉ मटेरियल बनता है, इसमें पैरासीटामॉल और सारे रॉ मटेरियल्स बनते हैं, वो पाकिस्तान में अभी तक डेवलप इतना नहीं हो पाया. Why do you think so? I mean, the numbers that you're quoting, you're saying 6.5 billion tablets. That's just insane, and that's just going to grow. You got the population. Projections आप निकाले, आपको अंधे को भी पता है कि ये किधर जा रहा है, right? So मेरे लिए तो it's a no-brainer कि you set up a local manufacturing. ये एक रॉ मटेरियल है, ये एक कंपनी, और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है. आई एम श्योर इस तरह की 25 कंपनियाँ ऑपरेट कर रही हैं. इनको ये रॉ मटेरियल चाहिए, और ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है. मैं अगर इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसमें इनएफिशिएंसीज है ना, ड्यूटीज़ हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं, उसमें सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाई हैवंट वी बीन एबल टू इंडिजिनाइज और सॉर्ट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेट? Achha, it's a very good question. And this question is asked by literally everyone, the regulator, the customer. The scale that you need and the margins that you need is actually missing. So आपको अगर पैरासीटामॉल तो यहाँ बन रहा है, बट उसका जो रॉ मटेरियल का प्लांट लगाना है, तो द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई. अच्छा, इवन विद द करंट डिमांड? इवन विद द करंट डिमांड. और दूसरा, जिन कंट्रीज से आ रहा है वो कंट्री सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं. आई मीन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. देयर आर 2 मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना दैट प्रोड्यूस 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई. सो यू कांट कम्पीट एसेंशियली. सो इतने ह्यूज हैं. अच्छा, ड्यूटी प्रोटेक्शंस हैं, बट आई थिंक इन अ लार्ज स्केल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन. इट्स जस्ट API इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस. अगर आप उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, APIs. APIs जो हैं वो यहाँ पे बनने चाहिए और बन रहे हैं. अच्छा, अगर इफ़ यू गो बैक फ्यू ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो ये बहुत इंप्रूवमेंट आई है. अच्छा. और मगर अभी माइल्स टू गो. अभी राइट, स्केल इतना बड़ा है, उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल एंड सो यू हैव टू हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल जो वो आप बनाएं. जब मैं PTA की बात कर रहा था, $490 million का प्लांट लगा था जब पेट्रोकेमिकल का प्लांट 98 में लगा था. अब द साइज एक्चुअली, देन दूसरा 490 मिलियन का डॉलर्स का जी उस वक्त 1998 में वो जो पेट्रोकेमिकल का प्लांट था. बट अब कह रहा हूँ कि द साइज ऑफ कि हम सारे रॉ मटेरियल्स को लगाने के लिए. अच्छा, दूसरा इंटीग्रेशन जो है ना, अब हम PAP बना लेंगे तो उसके पीछे का, सो वो तो हमें शायद ऑयल तक जाना पड़ेगा, नेफ्ता क्रैकर लगाएं ना. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो स्केल, स्किल सेट, क्योंकि उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई रखने. अच्छा, दूसरी तरफ अभी तो खैर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह और बहुत हाई हैं, बट जब कम भी थे, प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑल्सो एन इशू. अब आई डोंट वांट टू कम डायरेक्टली टू प्राइसिंग, बट जब तक प्राइसिंग अच्छी नहीं होगी, हम what do we say? What we say is that the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एसेंशियल लिस्ट बनाई है, मैं आई थिंक 29 और 30 मॉलिक्यूल्स है. उसमें लिखा है पैरासीटामॉल इज एन एसेंशियल ड्रग. उसकी प्राइस फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट्स रिक्वायर्ड. बट पैराडोल एक्स्ट्रा है फॉर एग्जांपल, उसमें कैफीन मिक्स है. इसी तरह पैराडोल
CF है उसमें, you know, there are combination products. Profitability जब बढ़ेगी, then investment is going to come easily. अब जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, मार्जिनल रिटर्न वर्सेस एवरेज रिटर्न, जो मार्जिनल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, दैट इज द गेम चेंजर है कि अगर मार्जिनल रिटर्न ही कम है तो देन व्हाई वुड पीपल इन्वेस्ट, और कब तक? सो आई मीन फॉर एग्जांपल पड़ोसी मुल्क में या वर्ल्ड वाइड एसेंशियल लिस्ट जो है वो प्राइस कंट्रोल है, बाकी को आप प्राइस कंट्रोल ना करें, और एंड देन सेल्फ केयर मेडिसिन या कंज्यूमर हेल्थ केयर मेडिसिन की भी प्राइस रेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए. I can give you an example. Just for example, a product like Eno has a price regulated infrastructure. So इसका मतलब है कि every year हमें एक price increase मिलता है जो inflation based होता है, और अभी recently we got an ad hoc price increase as well. But जब profitability बढ़ेगी, जब ROI बेहतर होगा, automatically investment is going to come in. And we are working in a healthcare sector जो globally I think $1.5 trillion का healthcare spend है worldwide. हमारी मेडिसिन पे सिर्फ $3 बिलियन है, $3 बिलियन है. सो अब ना इम्पैक्ट हम बहुत साइज में, अच्छा क्यों? क्योंकि हमारी प्राइसिंग भी कम है, और जो इनोवेटिव सोल्यूशन है वो पाकिस्तान में नहीं आ पा रहे हैं. जब इनोवेटिव सोल्यूशन इसलिए नहीं आ पा रहे कि अगर आज ग्लोबली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही हैं ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स, और वो पाकिस्तान में आने में इसलिए देर लगती है कि वो इतनी हाई कॉस्टली होती है कि वो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है. एंड देन even those people who can afford it, they can't buy it because वो pricing इतनी अच्छी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर यहाँ नहीं डालना चाहता. सो API के अंदर भी आई थिंक we'll have API पॉलिसी बनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी बनी है रिसेंटली, एंड काम हो रहा है एज आई सेड. बट आई थिंक we have a lot of time to reach to a standard where scalability profitability के साथ मैच हो जाए. मेक सेंस. मैं अगर प्राइसिंग के अंदर जाऊँ, बिफोर आई गो इनटू प्राइसिंग, मैं इसको 2 एरियाज में करूँगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पोटेंशियली कैन इवॉल्व, राइट? लाइक सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं से निकालना है आपने. पहला तो मुझे ये बताएं कि हाउ आई मीन जस्ट लेट्स टेक पैरासिटामोल और पैनाडोल. आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ हैविंग गेटिंग पैनाडोल फ्रॉम दुबई, and its magnitudes higher, like it's 60-70x higher there than the price here, and understandably so. I'm not arguing कि बहुत expensive होनी चाहिए, that is essential medicine है. But how can it be like दो different economies के अंदर इतना ज़्यादा difference कैसे आ रहा है? और उसके अंदर how do you again purely, मैं ह्यूमन साइड को साइड पर ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में हाउ डू यू जस्टिफाई दैट कि वो ₹2 की गोली जबकि वही मटेरियल पैकेज्ड दुबई में लेट से ₹200 का बिक सकता है या ₹500 का बिक सकता है. हाउ डज दैट सॉर्ट ऑफ वर्क? अच्छा देखिए, बिकॉज हिस्टोरिकली प्राइस हमेशा रेगुलेटेड रही, एक चीज़ ये. दूसरी चीज़ ये कि बट मैं कॉस्ट इनपुट से अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ ना कि कॉस्ट इनपुट कोई ना कोई तो नंबर होगा जिसके ऊपर आप एक पॉइंट पे आए कहेंगे कि यार आई मीन इन्फ्लेशन और नॉट, if the cost doesn't justify me selling it, the price control then becomes irrelevant. So not with your particular medicine. I don't know, but recently Panadol का बड़ा एक problem भी आया था, and I'd like to get more insight on that as well. But I remember I heard something about another sort of life-saving, very sort of niche drug. और वो हमने जाके रिसर्च की तो पता ये लगा कि जी मार्केट में वो मिल ही नहीं रही, बिकॉज सप्लायर को ये जो 2018 की बेसिकली डिवैल्यूएशन हुई थी उसके बाद से वो 10% जो रेगुलेटेड इंक्रीज था वो कर रहे थे. हालांकि उसकी डायरेक्ट कॉस्ट इनपुट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई थी कि दे वो स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इट. अच्छा, वो मार्केट में जो लेट से ₹20 की दवाई थी वो मार्केट में ₹150 की बिक रही थी ब्लैक में इम्पोर्ट होके. और वो जो मैन्युफैक्चरर थे उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि यार आप इसको हमें प्राइस इंक्रीज कर दें, 50% कर दें, हम इसको ₹30 पे ले जाते हैं, हमारी जस्टिफिकेशन आ जाएगी. मार्केट में ₹150 की प्राइस की प्रोडक्ट ₹30 की आ जाएगी. अच्छा, मुझे याद है उस टाइम की गवर्नमेंट ने कर आके नेगोशिएट किया, उन्होंने कर लिया कि ठीक है, सारा डेटा देखा, सारा कुछ देखा. वो रात को जब खबर चली तो चली थी 50% तो उन्होंने बढ़ा दिया. हालांकि 50% इजाफा नहीं हुआ था. अगर कोई मार्केट्स में जाता जाके देखता तो एक्चुअली ₹150 से ₹30 पे आया, कम हो गई, राइट? सो 1/5 तो ये प्राइस ओवरनाइट. बट वो एक फियर मंगरिंग है, इट स्प्रेड्स ईजिली एज वेल. और वहाँ पर आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द फार्मास्यूटिकल सॉर्ट ऑफ प्राइस अकाउंटिंग, बिकॉज वहाँ पर आपको समझ आई कि अच्छा, इट्स नॉट ऑलवेज एक बेसिक वो नहीं है कि जी बस प्राइस बढ़ गई, महंगाई हो गई. समटाइम्स जो आपकी वाली बात है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट विल गो हैंड इन हैंड. एंड
if there is a discrepancy there, then you actually end up having bigger problems in a lot of ways. So I'm trying to understand the cost part, and if you could give me the context on recently. I remember मैं खुद पैराडोल लेने जा रहा था तो वो एक पत्ते की लिमिट लगी हुई थी और मार्केट में पैराडोल अवेलेबल नहीं थी. What was going on there? So I'll give you 2-3 पर्सपेक्टिव के साथ इंफॉर्मेशन भी. अब मैं आपको 2-3 चीज़ें दें. May 2023, 11 months ending May 2023 versus 11 months ending May 2022. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है और फार्मास्यूटिकल आउटपुट 26% डाउन है. सो जब बात करें ना कि जब प्राइसिंग नहीं होगी या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो देन पीपल वुड स्टॉप इन्वेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग. लॉस क्यों करेंगे? मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ. जब आपने पैनाडोल की बात की 2021 के जून में 2020 के जून में पर केजी प्राइस ऑफ पैरासीटामोल वो 750 रुपये. फास्ट फॉरवर्ड दिस ईयर बिगिनिंग तक वो 2400 रुपये के जी हो गए. 2400 रुपये के जी का मतलब है कि 1 के जी में 2000 पैनाडोल 500 मिलीग्राम टैबलेट बनेंगे. ₹1.20 तो सिंपल एरिथमेटिकली उसमें पैरासीटामोल डला हुआ है. उसमें मे स्टार्च डलना है, उसमें एल्यूमिनियम फॉयल लगनी है, पीवीसी लगना है, उसमें कार्टन लगना है, उसमें बनना है, बिजली गैस और जो बंदा उस पर काम कर रहा है उसकी सारी उसकी सैलरी, और फिर कराची से पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका फ्यूल लगना है, वेयर हाउसिंग लगनी. व्हाट वुड हैपन? दैट द प्रोडक्शन वुड बिकम अनवायबल. राइट. और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी सब में यही हुआ. 26% 11 मंथ्स एंडिंग जो मैंने आपको भी दे. अच्छा, अब मैं आपको मई 2023 का मंथ वर्सेस मई 2022 का मंथ, ये 38% डाउन है. सो द थिंग इज, बट व्हाई इज इट हैपनिंग? प्राइस कंट्रोल. बिकॉज ऑफ प्राइस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर देन द प्राइस. तो फिर हम कहेंगे ठीक है यार, थैंक यू. अच्छा, अभी भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर आर ह्यूज कंपनीज जो नेशनल एमएस वो बना इसलिए नहीं है कि यार ब्रांड को एटलीस्ट सस्टेन करें. दूसरा, इवन इन केस ऑफ पैनाडोल वी कंटिन्यूड हैविंग लॉसेस बिकॉज कोविड था, डेंगी है, प्रेगनेंसी में, सब में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. सो वी सेड एटलीस्ट चल. और जस्ट सिर्फ ये मैं एज ए सेड कि इसकी बात नहीं, हर प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि 26% 11 दिस मीन देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग. उसको तो एक तो हो गया जो पहले मैं. तो इसका कोई सोल्यूशन निकला है? इसकी कुछ हमारी डिस्कशंस हुई हैं. देयर इज़ अ फ्रेमवर्क दैट वी हैव स्टार्टेड, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि फार्मास्यूटिकल या दवाओं का जो परसेप्शन पे भी हमें काम करना है. और आपने बहुत ही अच्छी बात की कि बेसिकली हमें ये देखना है कि 150 रुपये से 30 रुपये हुई है, ये 20 रुपये से 30 नहीं हुई. हाँ बिल्कुल. अच्छा, होता है कि जब शॉर्टेज होती है, अच्छा शॉर्टेज सिर्फ दवाओं में नहीं, किसी भी चीज़ की शॉर्टेज. वो मास्क में हुई थी जब स्टार्ट में. मास्क जो हैं वो कोविड के टाइम में शॉर्टेज एक्स्ट्रावेगेंजा, राइट. जो वो सप्लाई चेन शॉर्टेजेस थी क्योंकि वो शिप्स ही नहीं आ पा रहे थे ना. सो वो भी थी. यस. उसके बाद जो होता है कि ट्रेडर्स एंड ऑल उनको. और दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, माइग्रेन है. वी हैव पैरानोल माइग्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट यहाँ नहीं है अभी. पैरानोल वुमेन है, वो पूरी दुनिया में है, यहाँ नहीं है, वो मेंस्ट्रुअल पेन. इसी तरह और सारी प्रोडक्ट्स. जब तक ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस यहाँ उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक राइट लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड नहीं होगी. एंड इट्स जस्ट नॉट प्राइसिंग. जस्ट मैं शुरू में मैंने कहा ना कि अगर एपीआई पूरे यहाँ बन रहे हो, पूरी वैल्यू चेन यहाँ पे हो, मशीनरीज पे हमें अवेलेबिलिटी हो कि भाई ड्यूटी वाइज एक इंसेंटिवाइजेशन हो, तो दिस हैज़ ह्यूज पोटेंशियल. आप सोचें ना कि जब मैंने आपका तकरीबन $1.5 ट्रिलियन बट उसमें मेडिकल एवरीथिंग है, बट अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज. हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन $200 मिलियन है फार्मा का पूरी पाकिस्तान की. अच्छा, सो एक्सपोर्ट कर रही है फार्मा? जी, $200 मिलियन. ठीक है. $24 बिलियन है इंडिया का, राइट. अब आप 200 मिलियन वर्सेस 24,000 मिलियन. यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट. बट देन सो द प्राइस कंट्रोल वुडंट. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना था. पहला तो मेरा ये था कि कॉस्ट की अगर आप मुझे बताएं. मेरे लिए जब आपकी कंट्री के अंदर जब डिवैल होती है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे लिए बड़ी लॉजिकल ये होगा कि यार टॉप डाउन ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो कहेंगे यार ठीक है, यहाँ पर ना रॉ मटेरियल सेम, एनर्जी शायद रीजन से थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है,
कॉस्ट ऑफ लेबर मुझे अब सस्ती हो रही है, राइट? मेरे लिए इट मेक्स मोर सेंस कि जो पाकिस्तान में बेच रहा हूँ तो मैं उसके बजाय मैं जो है ना वो बजाय इसके मैं मैन्युफैक्चरिंग कम करूँ, मैं इसको अफ्रीका में बेचना शुरू कर देता हूँ, मैं इसको मिडल ईस्ट में ले जाता हूँ वगैरह वगैरह। वो हम क्यों नहीं होता हुआ देख रहे? और अगर मैं एक्सपोर्ट के उसमें हूँ, क्योंकि माई अंडरस्टैंडिंग है एक्सपोर्ट की तो कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, आपने तो एक्सपोर्ट करना है। वो तो ब्रांड के ऊपर है कि उसके दुनिया के जिस तरह से भी वो चल रहे हैं। वाई वर वी अनएबल टू ग्रो आवर एक्सपोर्ट्स? आपने खुद कहा कि 200 मिलियन वर्सेस 24,000 मिलियन, एंड इंडिया हैज़ अ बूमिंग फार्मा इंडस्ट्री, और उसके अपने मसाइल भी 10 आए हैं, बट फिर भी बट फिर भी एंड बड़ी लॉजिकल है। लाइक मैं आज देखता हूँ आप कराची में बैठे हुए हैं, CPEC का एक कॉरिडोर है, अफ्रीका में एक राइज आ रहा है पॉपुलेशन का, सारा कुछ का। मैं शायद लेफ़्ट राइट 10 चीज़ों का बोलूँ, एग्री हो मैं शायद कह सकता हूँ, और दूसरा मुझे फार्मा नज़र आता है कि भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट वो हो सकता है पाकिस्तान से। यहाँ से निकले सीधा अफ्रीका जाए, सो मच पोटेंशियल। अच्छा, आई टोटली एग्री। मैं आपको आई विल गिव यू कपल ऑफ थिंग्स। इस $200 मिलियन में भी हर्बल शामिल है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हर कंट्री, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो यूरोप हो, उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको FDA अप्रूव प्लांट चाहिए तभी तो हम एक्सपोर्ट कर सकें, उसका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ही अलग है। अभी लीड्स और इस तरह की सर्टिफिकेशन बहुत सारी लोकल नेशनल ह्यूज फार्मा कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, बट इंडिया में देयर आर न्यूमरस। बांग्लादेश में देयर FDA अप्रूव प्लांट। यहाँ पे FDA अप्रूव प्लांट लगाने के लिए द कॉस्ट इज सो हाई। So what I'm saying is कि प्रॉब्लम, अच्छा अब प्रॉफिटेबिलिटी, लोकल एंड इंटरनेशनल देन इज डायरेक्टली लिंक्ड बिकॉज यू नीड। और जो आप लोकल की प्राइसिंग की बात करते हैं ना कि यहाँ नहीं, तो अच्छा एक और भी चीज़ समझनी है कि देखिए हम लोग, अब आई एम टॉकिंग इन प्योर फाइनेंस लैंग्वेज, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपकी सब पे डिवाइड होती है। इन पाकिस्तान अगर प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, पीपल वुड बी यूजिंग दैट टू इन्वेस्ट इन द एक्सपोर्ट्स एज वेल। अच्छा, और दूसरा, अगर आज कोई भी फार्मा प्रोडक्ट बंद होती है जो आपने अभी मेंशन किया, वो 60-70 टाइम्स महंगी इंपोर्ट करनी पड़े, अभी भी ग्रे से और चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम जो फार्मास्यूटिकल के सिर्फ एक्सपोर्ट और लोकल दोनों को एक साथ ओवरऑल अम्ब्रेला में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम उसको इतना वायबल कर दें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए। अभी भी जितनी भी इन्वेस्टमेंट और जितना कुछ हुआ है वो लोग जो नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज एंड मोर नेशनल कंपनीज ने इन्वेस्ट खुद से किया है। और दिस 200 मिलियन जो है अभी वो ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी बना है 2023 का। सो काम, गुड न्यूज़ इज़ दैट स्टार्ट हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही फार्मा एक्सपोर्ट अवार्ड भी हुए थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो देयर, डिफरेंट मिनिस्टर्स वर देयर। सो the attraction towards this and attention towards this has increased. Right. But important thing is कि जो infrastructure में हमें invest करना है, एक और भी चीज़ है कि you also need the right people. So अब human resource की side भी बहुत important है। I mean, if you have to run an FDA approved plant, you have to have the right skill set, education. बहुत सारे लोग हैं जो pharmacist हैं, engineers हैं, वो आपको उस level के भी चाहिए जो ये चीज़ें run कर सकें. So I mean, I think we'll have to have a very concentrated effort in terms of making sure that this industry becomes viable, not just for Pakistan market, but export wise. How optimistic are you that we may just be able to crack that code? As I said, I mean, we have taken baby steps up tak, but the good news is that अब realization शुरू हुई है. So I mean, as I said, just last week ये जो last week पैसा अवार्ड्स हुए, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट अवार्ड्स, एंड इसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम आया, फार्मा के टारगेट्स बने एक्सपोर्ट से रिलेटेड। पॉलिसी फ्रेमवर्क में do you think we're going to look at a major revolution in the coming timeline? We should. I think this is not a choice right now. I think not just this sector, हम सब सेक्टर्स के बारे में बात करें, बट मोर सो इन दिस सेक्टर कि यहाँ पे क्वालिटी रिक्वायरमेंट इतनी हाई कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ देयर सम लेवल ऑफ इंसेंटिवाइजेशन, जो मशीन मंगवानी है, क्वालिटी इक्विपमेंट मंगवाना है। अब देखें जब कोविड के बाद या जब इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन लगी, एक क्वालिटी इक्विपमेंट आपके पास, अब मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक प्रिंटर है, अब आपके पास पेपर रेम ही नहीं है तो प्रिंटर का फ़ायदा क्या? अब क्वालिटी इक्विपमेंट है बट उसके अंदर से जो हमें यूज़ करने के लिए चीज़ें चाहिए वो,
सो आई थिंक दैट दूसरा जो रिक्वायरमेंट हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वो भी डिफरेंट होती हैं. अब फॉर एग्जांपल लैब स्केल टेस्टिंग करानी है तो आपको यू नीड टू हैव दैट इन्वेस्टमेंट. अब वो इन्वेस्टमेंट पहले करनी है, एक्सपोर्ट बाद में आना है. सो आई थिंक दैट्स वे द इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकम उस वक्त आएगी जब आप लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इतना एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट जमा करें ताकि आप बियॉन्ड जाएं. एंड देयर आर कंपनीज दैट आर डूइंग इट. सो आई थिंक प्राइसिंग, मशीन्स की से रिलेटेड इंसेंटिव्स एंड देन एक्टिवली हेल्पिंग द फार्मास्यूटिकल मार्केट. और आई थिंक फोर्थ जब जिसमें भी टाइम लगेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को अपने ब्रांड्स भी बनाने पड़ेंगे. अभी तक हम जेनेरिक में काम कर रहे हैं. R&D हमारे पास इतनी क्या है ही नहीं. और जो R&D हुई वो हर्बल में हुई है, वो काम कर रहा है. हर्बल साइड पे हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. सो आई थिंक इट्स मच बियॉन्ड जस्ट वन इशू. आई थिंक बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ में. आपने इसमें एक पॉइंट पे टैलेंट का मेंशन किया है. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. पाकिस्तान में बहुत बच्चा निकलता है बी फार्मा का. और मैं पूछता हूँ, मेरे दोस्त भी 2-4 निकले तो मैं उनसे पूछा था क्या यार व्हाट्स द फ्यूचर देयर. तो कहते हैं यार किसी फार्मेसी में काम कर लेंगे और हर फार्मेसी में एक बंदा अटैच होगा, वो बैठ के जनाब को वर्क कर देगा. आर देयर रोल्स विद इन कंपनीज लाइक योरसेल्व्स जिसमें बी फार्मा के लोग होते हैं? आपने जब R&D की बात की तो उस पर R&D में क्या होता है? उसमें क्या बायो इंजीनियरिंग वाले लोग काम कर रहे होंगे, या उसमें फार्मा के लोग काम कर रहे होंगे, या उसमें डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे? जब हम कहते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड तो उसमें आपने कहा कि जी हमें टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी टैलेंट. वो किस किस्म का टैलेंट होगा? आई एम श्योर वो जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है वो तो एसेंशियली एक सॉर्ट ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट है जिसको आपने स्किल सिखा दी क्वालिटी की, बट उससे ऊपर तो वो नहीं कर रहा. बट आई एम श्योर देयर आर लेवल, राइट? फ्लोर मैनेजर होगा, ये होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की ग्रोथ आ रही है. सो run me through the talent requirement and what are the different types of people that you employ in terms of expertise. अच्छा, गुड न्यूज़ है कि जो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसमें आपको जो टैलेंट मिलता है सबसे ज़्यादा डाइवर्स मिलता है. आप कोई अदर कंपनी उठा लें जिसमें कोई डॉक्टर काम करता हो, या कोई फार्मासिस्ट काम करता हो, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करता हो, यू विल फाइंड द फाइनेंस, HR, मार्केटिंग. बट सो दैट्स समथिंग विच फार्मासिस्ट को एम्प्लॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही होते हैं, जिसमें सेल्स रेप्स भी होते हैं, यानी डॉक्टर्स के पास जो डिटेल भी करते हैं. अच्छा, जो R&D है ना, वो फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स, उसमें हमें एक रोल जो हम है वो है मल्टीनेशनल्स का भी. नेशनल कंपनीज भी कर रही हैं इस पर. बिकॉज ऑफ अ ह्यूज प्राइसिंग इशू मल्टीनेशनल स्टार्टेड मूविंग आउट. बहुत सारी मल्टीनेशनल्स यहाँ से चली गई. जब अब मुख्तलिफ कंपनीज में हम लोग जो बात करते हैं, लॉट ऑफ R&D सेंटर्स हैव बीन बिल्ट इन आवर नेबरिंग कंट्री और मुख्तलिफ दुनिया. दैट ह्यूज R&D रिसोर्स एक्चुअली ऑल्सो कम्स फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक प्रोडक्ट हाई एंड ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट या TB की कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में 10 साल का टाइम लगता है एंड $hundreds of millions लगते हैं. अब यहाँ पे उसकी वायबिलिटी कैसे बनेगी? अच्छा, बट इट डजंट मीन कि ये कभी भी नहीं हो सकता. एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे काम हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि ग्लोबल किसी को पाकिस्तान में बनवाना है तो बनवा ले. दैट्स हाउ इंडिया स्टार्टेड. They become a big pharmaceutical producers of global companies. And that's where the evolution started coming in. Huge influx of volume आया, हमने बनाया, उन्होंने अपने लिए बनाया और बना के एक्सपोर्ट करना शुरू किया. In Africa they say that India is the pharmacy of Africa, right? Now हम इससे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं वो हम जेनेरिक्स ही कर रहे हैं, यानी कि पैरासीटामोल ही बना दी, या ibuprofen ही बना दी, या amoxicillin ही बना, वही जो ओल्ड फॉर्मुलेशंस हैं उन्हीं को हम बना के बाहर बेच रहे हैं. तो R&D वाला काम तो अभी दूर है, या एम्प्लॉइंग दीज फार्मासिस्ट इन R&D अभी दूर है. इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि हम स्टार्ट करें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हम स्टार्ट करें प्रॉपर इंसेंटिवाइजेशन, हम स्टार्ट करें स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर दिस इन यूनिवर्सिटीज़. फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो स्किल सेट्स चाहिए, बट जब तक ये सब प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से नहीं बनेगा. आज अगर हम बात करें कि ग्लोबल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो तो $1 billion अगर उसके R&D में इन्वेस्ट हुए, या इवन हाफ ऑफ हाफ $200-300 million, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट्स फाइन फॉर देम. हम अभी वहाँ उस स्केल पे नहीं. आपके पाकिस्तान का, अगर आप यूर फाइनेंस का है, राइट, डू द नंबर्स जस्टिफाई कि पाकिस्तान से पोटेंशियल एक्सपोर्ट हो सकती है? डू यू थिंक? वेल,
एक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर इंडिया ने पूरी अफ्रीकन मार्केट ले ली और इंडिया के पास चीप रिसोर्स भी है, सप्लाई चेन भी डेवलप हो गई है, sort of similar to what you mentioned early on where you said कि 40% of the entire global sort of paracetamol supply is controlled by one couple of factories in China, right? So वो economy of scale के ऊपर you can't even compete. Similarly, you know, pharmaceutical so rather what I'm trying to understand is, are we too late to the party, or is there potential, is there certain areas यार यहाँ पर margin space है और किया जा सकता है अगर you know. अच्छा देखिए, we are not late and it's never too late. जो वो if you think कि ये late हो गया तो फिर तो, but if you ask me the number, it can easily be 20 to 30 times of this. हमें end to end investment पे जाना पड़ेगा. API पे heavily invest करें, and there are people who have started doing it, but I think they need hand holding there. Then जो product हम समझते हैं कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की होनी चाहिए, बिकॉज वो जो स्टिग्मा है वो एक, जब वो दोनों साइड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट इवॉल्विंग एंड देन थिंग्स विल गो अब्रॉड एंड, और एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. अभी हम कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट कहाँ है? अफगानिस्तान. सेकेंड हाईएस्ट आई थिंक श्रीलंका है, जहाँ पर रेगुलेटरी जो है हमसे थोड़ा करीब है. सो दिस मीन्स कि वी विल हैव टू हैव द राइट नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी रूल्स, we'll have to have the right investment in our raw materials and APIs, and then we'll have to have the right level of affordable products but at a reasonable price. So it's a lot that we have to do, but the export at this junction एक इसको proactively देखा जाना शुरू हो गया, which is the good news. Makes sense. थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को स्विच करता हूँ. आई वांट टू अंडरस्टैंड सेल्फ केयर. जाहिर है कि इट्स प्रोएक्टिव इन लॉट ऑफ वेज, एंड द वे पोस्ट कोविड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स हेल्थ केयर, द इन्वेस्टमेंट दैट हैज स्टार्टेड टू गो इनटू हेल्थ केयर, वो बहुत रेडिकली इंक्रीज़ हुई है. और उसके अंदर एक सर्टन इन द एज ऑफ AI टुडे जब हम देख रहे हैं तो हेल्थ केयर बहुत रैपिडली चेंज होती हुई नज़र आ रही है. बाय एंड लार्ज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमारा वो जो आपने कहा ना एक जेनेरिक स्टाइल ऑफ हेल्थ केयर था, बुखार हो गया ये खा लो, ये हो गया ये कर लो. बट रिसेंटली व्हाट वी बिगन टू सी इज़ दैट टेक्नोलॉजिकली अब हम बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं. यू नो, एप्पल वॉच पहना हुआ है आपने, आप टेम्परेचर्स एंड हार्ट रेट्स एंड 10 चीज़ें कर सकते हैं. बहुत सारी टेक आ रही है जो कि नैनोबॉट्स निकाल के जिंदर आपका वो ब्लड स्ट्रीम में डाल के 10 चीज़ें आपकी निकाल लेती है. अभी तो ये स्टार्टिंग है. न्यूरालिंक अभी रिसेंटली आ रहा है जिसके वो ब्रेन के साथ आपका इंटरफेस करेगा और कैन बिगिन टू गैदर अ लॉट ऑफ डेटा एंड सो जाहिर है कि जब आप प्रोएक्टिव की बात करते हैं, इवन रिएक्टिव में भी ये होता है, बट प्रोएक्टिव में पर्टिकुलरली इट्स ऑल डेटा ड्रिवन, राइट. सो अभी तो बहुत एक सॉर्ट ऑफ इनएफिशिएंट सा तरीका है कि आप कहते हैं कि साल में मुझे 2 दफ़ा जाना है और जाके मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगा, उससे मुझे पता लगेगा कि मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम कम है, तो मैं उसकी वो ले लूँगा. इवन विटामिन डी का वो पता लगता है, वो मुझे 2 टैबलेट्स दे देते हैं, बट पता नहीं लगता कि यार ये 2 हफ्ते बाद बेहतर हुआ है नहीं हुआ, क्या सीन है. How do you see the future of this particular industry? You know, मैं थोड़ा सा I want you to put on your sort of daydreaming hat. I'm sure you've attended a lot of conferences, begun to see where this industry is going. What's the dream here? कि किस तरफ, मैं कहता हूँ आज से 30 साल बाद how would we be approaching self-care? It's a very good question. सेल्फ केयर आज से 20-30 साल बाद की बात से पहले आई वुड वांट टू कंपेयर इट विद जस्ट 2-3 साल पहले. राइट. आपने कोविड मेंशन किया. सेल्फ केयर या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में जितनी स्लोली वो एक व्यू चेंज हो रहा था, वो कोविड में मैसिवली चेंज हो गया. एवरीवन वांटेड कि वो अपनी हेल्थ का कंट्रोल खुद लें. बहुत सारे लोगों ने मल्टीवाइटामिन भी शुरू कर दिए, जॉगिंग भी शुरू कर दी, यू नो, डाइट भी बेहतर करना शुरू कर दिए. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सेल्फ केयर जो है ना, ये अभी अगर चॉइस है, विद टाइम इज गोइंग, द अवेयरनेस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इट हैज़ 2 benefits बिफोर कमिंग टू वेयर इट विल बी, इकोनॉमिक एंड सोशल.
अब सोशली फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लेजी, आप अपने वाइटामिन का ख्याल नहीं रख रहे, एसेंशियल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू इन्जॉय योर लाइफ सोशली. देन आप जब बीमार हुए तो इकोनॉमिकली देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, खुदा न खास्ता, या ट्रांसपोर्टेशन, एंड इवन जो टाइम आप काम नहीं कर रहे वो लॉस प्रोडक्टिविटी भी है. So socially और economically must. Now with time with these gadgets जो हम पहन रहे हैं, awareness बढ़ती जा रही है and people are proactively working on it. दो चीज़ें जो उसमें अगर ठीक हो जाएं, so in the country and globally जो health care systems हैं across the world, वो self care को acknowledge करना शुरू कर दें. अभी भी जो हमारा health care system है वो बीमारी के बाद से शुरू होता है, बीमारी से पहले नहीं शुरू होता. पाकिस्तान में बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, वो वहाँ पे बताती हैं कि औरतों को क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बिफोर प्रेगनेंसी. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विल चेंज विद द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी हैव. देन अदर देन द ओवरऑल जो चीज़ें हमें पता चल रही है, पीपल ऑल्सो लर्न विद टाइम. अब जब हम इन कोविड के टाइम पे जब अब लोगों ने अपने न्यूट्रिशन पे और चीज़ों पे काम शुरू किया, दे आर एबल टू लिव अ बेटर लाइफ, एंड विद दिस सेल्फ केयर, Haleon also believes in better everyday health, and we want that people should take care of their own health. फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में what I see is कि विद टाइम अवेयरनेस पे बहुत काम हो रहा है. अवेयरनेस बढ़ रही है, as I mentioned, because of gadgets, but also people are taking this much more seriously than they used to. So I think future में 20 से 30 साल बाद, I think अगर governments, healthcare sectors काम करना शुरू करें इस पे, तो we will be able to even reduce the level of expenditure. So before I come to the other reason, जो कि pharmacy या pharmacist related है, जो दो तरह के हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं ग्लोबली. वन इज़ जो गवर्नमेंट पे करती है, एंड द अदर वन इज़ आउट ऑफ पॉकेट. अब पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ पॉकेट, क्योंकि ठीक है अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है फ्री इलाज है, बहुत सारे हॉस्पिटल, बट मोस्टली आउट ऑफ पॉकेट. अल्लाह ना करे आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप खुद जाएंगे. नाउ व्हेन इट्स आउट ऑफ पॉकेट, देन व्हाई इन्वेस्ट इन मेडिसिन एट अ लेटर स्टेज एंड नॉट इन्वेस्ट इन द वाइटल न्यूट्रिएंट्स. एंड इसी तरह आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कमी है कैल्शियम, दिस दैट, जो सब आपको नहीं पता, बट जनरली इट्स, तो व्हाई डोंट यू टेक दो सप्लीमेंट्स मच अर्लियर. सर ये तो एक हेल्थ केयर सेक्टर. दूसरे जो फार्मासिस्ट हैं, एक और भी चीज़ जो पाकिस्तान में चेंज होनी है. पाकिस्तान के अंदर इफ़ यू गो टू अ फार्मेसी, बहुत सारी फार्मेसी जहाँ पे फार्मासिस्ट होगा, बट देयर आर सर्टन फार्मेसी फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ ट्रेडर है, वहाँ पर एक बंदा बैठा है जिसने आपने पूछा. जब फार्मासिस्ट होगा तो वो प्रोएक्टिवली आपको चीज़ें बता, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अगर कोई पेशेंट उसके पास या प्रोस्पेक्टिव पेशेंट उसके पास है, वो कहे भाई आपको ये चैलेंज है, आप स्टार्ट यूजिंग इट, और आपको जो है वो लॉन्ग टर्म फायदे देंगे. रेगुलेटरी वाइज आर्ट pharmacies by law supposed to have a pharmacist? They have to have a pharmacy license, but there are certain places जहाँ पे enforceability उतनी strong नहीं, but pharmacy license उसी वक्त मिलता है जब कोई pharmacist. Right. But यहाँ पे role of pharmacist थोड़ा different है. Globally क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो नुस्खा लिखते हैं, बट वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे लिखते हैं, वो पैरासीटामोल लिखेंगे, और फार्मासिस्ट जो है वो आपसे और चीज़ें पूछेगा, और आप इधर ज़रा डिफरेंट है. यहाँ पे बहुत सारा नुस्खे वाली चीज़ें, प्रिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें, वो आपको फार्मेसी से मिल जाती है. सो जो हेल्थ केयर सेक्टर या सेल्फ केयर सेक्टर है, उसमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल रियली ट्रस्ट है. बहुत बार तो होता भी है कि फार्मासिस्ट के पास ही चले जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, बेसिक चीज़ों के लिए. बेसिक चीज़ों के लिए. अच्छा, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर देनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि वहाँ पे शायद अगर वो ट्रेन बंदा नहीं बैठा तो दैट दे विल बी एबल टू गिव. सो आई थिंक इन सेल्फ केयर ऑल्सो वी हैव अ जर्नी, जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल पे बात करें. अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली पूछूं कि अगले 7 साल में 2030 का कोई व्हाट्स द विजन ऑफ द इंडस्ट्री, एंड यूर लाइक राइट नाउ द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट, व्हाट्स द विजन है? मैं कहता हूँ देयर आर सर्टन वेरिएबल्स आउटसाइड राइट नाउ पाकिस्तान में. एक sort of black swan event आया हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर. Assuming कि that doesn't exist, what would be your sort of goal there? What would be the plan कि यार this is where the industry should go, this is where sort of Haleon should go, and what should the outlook be for Pakistan and Pakistan's pharmaceutical industry? We have to work on innovation.
जो नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, वी हैव टू ब्रिंग दोज इन द कंट्री. बहुत सारे सॉल्यूशंस बाहर अवेलेबल ऑलरेडी हैं एंड अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी हैं. देयर इज़ अ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो बाहर से मंगवा रही है या बाहर जा रही है. so, कोविड की वैक्सीन भी आई तो बहुत सारे लोग बाहर ट्रैवल करके गए और आ गए. सो दिस मीन्स कि हमें उन इनोवेशंस को एक तो पाकिस्तान में लाना होगा. वो इनोवेशन लाने से ये होता है कि वी आर एबल टू वर्क ऑन दोज इनोवेशन. जब हम उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे या उनको कस्टमर को सेल करेंगे तो एक तो इम्प्रूवमेंट इन लाइफ होगा. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 3, 4, 5 नुस्खों को मिला के उसके पे काम करें. दूसरा, व्हेन वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दिस हियर, द exportability or the perception about the quality would also improve globally. Now, when you talk about future, other than innovation, I think there are a lot of people who have started investing already. But we'll have to be very clear. हर कंट्री का जो एक्सपोर्ट करना है उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलग है. We'll have to get the right people and outside in approach लाने के बाद हमें टारगेट करना पड़ेगा, जो कि एज ए साइड अगेन कंपनीज कर रही हैं. फॉर फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इफ द एसेंशियल्स लाइक प्राइसिंग, एसेंशियल्स लाइक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, sky is the limit. Even in this export, I've talked to people, they believe that it can easily be $3 billion. And that will only happen when we have the API policy properly implemented, raw materials भी यहाँ बने, उनके raw materials भी यहाँ बने. वंस ये जब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस भी उस पर काम करना शुरू करेंगे. द रीजंस वाई अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स लेफ्ट, वो यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते. जैसे थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया कि भाई अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, डॉलर जब बढ़ गया तो नंबर ऑफ the reason they left is not one, there are many. But जो यहाँ पे नेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज है जो यहाँ पे want to stay and they want to invest, वो सब are at the right junction right now. I feel बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत सारे रेगुलेटरी और फ्रेमवर्क पे काम हो रहे हैं. If you are able to solve all those things, sky is the limit. And as I said, $3 billion is something that people in the industry this. Right. Farhan bhai, I'm going to ask you one last question. I generally ask all of my guests. You stayed in the UK and you also went to the US for a couple of years, and by and large you stayed in Pakistan, you chose to stay in Pakistan, and for the time being it seems like you are in Pakistan. All of the evolution that you've seen throughout, ज़ाहिर है आपने एक इंडस्ट्री को ना सिर्फ बहुत क्लोजली देखा है, you're sitting at the top of it now at this point in time. उससे एक sort of मैक्रो का एहसास होता है, चीज़ों की एवोल्यूशन का एहसास होता है, अप्स एंड डाउन्स का एहसास होता है, और उससे बंदा you're placed better to be able to extrapolate data and see where things might go. If I were to ask you, how do you see Pakistan overall beyond just your industry 27 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen throughout your life, with this additional aesthetic कि आपने मुझे ये नहीं बताना कि पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमेंस टैलेंट है, और ये नहीं करना कि अगर हमने ये कर लिया. आई वॉन्ट यू टू नो टू टेल मी कि जो हो रहा है ना, विदाउट द अगर्स, हाउ डू यू सी दैट सॉर्ट ऑफ इवॉल्विंग 27 years from now? अच्छा देखिए, दो तो कैवियर आपने डाले, टैलेंट का और पॉपुलेशन का. बट टैलेंट कुछ एक मिनट के लिए रोक दे, बट द मार्केट साइज, वी आर वेरी रेलिवेंट. I mean 240 billion people, and हम लोग 1981 में 120 million थे. 2050 का estimate 350 million है. So yeah. So these are people that are possible market for anybody. और बहुत सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले और अपने huge investment has come in. So we are very relevant. वो इन्वेस्टमेंट आती भी रहेगी, यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते रहेंगे लोगों को. So that's one. The second thing is that urbanization भी बहुत तेज़ी से हो रही है. आज से आप 20 साल पहले चले जाएं, सो घर के अंदर आपको एक टूथपेस्ट मिलता था. अब बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि अर्बनाइजेशन से कंजम्पशन भी बहुत, और लाइफस्टाइल भी चेंज होगा जब मिडिल क्लास बढ़ेगी.
This middle class and this population is our opportunity. That's why I'm very positive about Pakistan. Acha, but if, as you said, if we don't invest on it, so it can even be a Disaster. challenge. Yeah, I would not say. Because these people, we have to find jobs for them, we want to find avenues for them, we'll have to have housing for them, we'll have to have food for them. So वो pressure भी बढ़ता है. But we are at a very important junction right now. And I think 120 मिलियन से 240 मिलियन हम जितने साल में हुए हैं उसमें 120 मिलियन उससे जल्दी ऐड होंगे. So इसलिए for bigger corporates, for bigger IT कंपनीज, फॉर विद डेटा वाली कंपनीज, उनके लिए मार्केट बड़ी रेलिवेंट. और आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा बहुत से स्टार्टअप्स भी आए. यस, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ बैड न्यूज़, बहुत सारे स्टार्टअप्स कुड नॉट वर्क. अर्ली स्टेज में हमेशा वो तो होता ही है. बट देयर वाज अ सीरियस एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट. राइट. आई थिंक विद द स्टेबिलिटी दैट्स गोइंग टू कम इन इंशाल्लाह वेरी सून, दैट साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन. Right. And I think in the next few decades of Pakistan, with the large market size that we have, with the large consumer base that we are very relevant for a lot of companies, a lot of countries, a lot of products, a lot of brands, and we'll remain that way. Makes sense. I hope we see that as well. Thank you for the optimism. Thank you for sharing all the insight. And thank you for coming in. Always welcome. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, आप दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं, how do you see the pharmaceutical industry in Pakistan? What are your thoughts on it? Are you a B Pharma student or a microbiologist or a bioengineering student or a worker? How do you see that industry in Pakistan? The opportunities there. आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये किस तरीके से इवॉल्व करेगी? इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ का सादा पे आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's a thought that counts. नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके overseas Pakistanis can help us stay independent. There's a link to Stripe. You can support us there as well. But anyways, this was Muzamil, Hasan. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.